So we will start today with compounds of group 13 elements. We have started group 13 elements, that is boron family. So first compound of 13 group elements which we will study is hydrides of boron. The first compound is the hydrides. So what are hydrides? Any element, let it be metal, when it combines with hydrogen, it forms the hydride. For example, sodium hydride. Now we are studying the boron family. So boron hydride, for example, BH3. Boron AlH3. ASH3, you know they have three outermost electrons, so they pair with three hydrogen atom to form BH3, AlH3 and ASH3. So these are called as the hydrides of boron family. And the first, these are the hydrides of boron, hydrides of aluminium and hydrides of arsenic. So hydrides of borons, these are called as boranes. Hydrides of borons we are called as boranes. So today we'll study the boranes in detail. So boranes, they are the hydrides of boron and they have general formula BnHn plus 4 and BnHn plus 6. There are two types of hydrides. One family is BnHn plus 4 and can be any integral number, and it is BnHn plus 6. So there are two series, BnHn plus 4 and BnHn plus 6. And examples are, if n is 2, we have B2H, 2 plus 4 is 6, so it is B2H6. Similarly, it is B5H9, B6H12, and those of BnHn plus 6 series ये हैं B4H10, B5H11 and B6H12. तो इसमें से जो सबसे important hydride है वो है B2H6, and B2H6 को बोलते हैं हम, it is called as diborane. It is called as diborane. So we will study diborane in detail. So what is the naming of diborane? For example, I have B2H6, so it is called as diborane, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम 6 मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. फॉर एग्जाम्पल यू हैव B5H9. B5H9 it will be written as pentaborane, ब्रैकेट में 9. पेंटाबोरन मतलब 5 बोरोन एटम, 9 मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. फॉर एग्जाम्पली इट इज़ पेंटाबोरन 11, इट इज़ हेक्साबोरन 12, इट इज़ टेट्राबोरन 10, इट इज़ हेक्साबोरन 10. तो दीज आर द boron hydrides. So we will study B2H6 in detail. So there are different methods of preparation. First is the methods of preparation of diborane, how it is prepared. The first method is when sodium boro, it is the laboratory method of preparation, how it is prepared in lab in large scale. So in laboratory method, sodium borohydride, it is treated with iodine. Sodium borohydride, it is treated with iodine, and by this treatment it results in formation of B2H6 and sodium iodide. B2H6 in about 98% of the yield is B2H6. Okay, plus hydrogen is liberated. So this is the most important method for preparation of diborane. Second is the reaction of boron trichloride BCl3 plus it is reduced, मतलब हाइड्रोजन इज एडेड और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया जाता है इसको in presence of electric discharge. So what will it form? It form B2H6 and HCl. This is one of the method. Again BCl3 से एक और मेथड है B2H6 प्रिपेयर करने का. अगर हम BCl3 को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या कर दें, हम इसको रिड्यूस कर दें, तो अगेन इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ B2H6. One more method which is this is third method. One more method of formation, it is if I have sodium fluoride. I have BF3 plus sodium hydride, boron tetrafluoride or sodium hydride, it also result in formation of B2H6. ठीक है, तो these are the method of preparation of वो डाइबोरेन B2H6. एक है सोडियम बोरोहाइड्राइड से, बाकी हम BCl3 से मेथड प्रिपेयर कर सकते हैं और BFC से प्रिपेयर कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड. ये जो डाइबोरेन है, डाइबोरेन B2H6, ये कैसी है? इट इज़ अ कलरलेस गैस. हम देख सकते हैं यहाँ पे देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. लेबोरेटरी मेथड बाय रिडक्शन ऑफ आयोडीन, बाय BCl3 गिविंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज,
by BCl3 with different reducing agent, lithium aluminum hydride, lithium hydride or sodium hydride, it result in formation of B2H6. One more method is BF3, in presence of sodium hydride, again it gives B2H6. And B2H6, it is a colorless gas with a foul smell, colorless foul smell gas. So these are the some of the methods of preparation of diborane. If I tell about stability of diborane, तो if I take diborane B2H6 and if I heat it, अगर मैं इसको हीट कर देती हूँ तो I get large number of polymeric hydrides. ये स्टेबल नहीं है, बहुत सारे हमारे पास क्या मिल जाते हैं हमें polymeric hydrides. For example, it result in formation of B5H10, it result in formation of B4H10, it result in formation of B6H12. तो बहुत सारे हमें क्या मिल जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्राइड्स, हायर नंबर ऑफ हाइड्राइड्स, जिसमें बोरोन का नंबर ग्रेटर देन 2 है. अगर हम इसको हीट करें तो हमें ऐसे हाइड्राइड्स मिल जाते हैं. तो दिस इज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ B2H6 बोरेन. अब क्या है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अगर मैं B2H6 के ऊपर ऑक्सीजन डाल दूँ तो किस में चेंज हो जाएगी, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ B2O3. B2O3 इज कॉल्ड एज डाइबोरोन ट्राईऑक्साइड. इट इज़ डाइबोरोन ट्राईऑक्साइड. तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इट चेंजेस इनटू B2H3. अगर मैं इसको मैं वाटर डाल दूँ, एक्शन ऑफ वाटर, अगर मैं इसमें वाटर डालूँ, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H3BO3. H3BO3. H3BO3 इट इज़ कॉल्ड एज ऑर्थोबोरिक एसिड. ऑर्थोबोरिक एसिड. रिएक्शन ऑफ अल्कली, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसके ऊपर KOH डाल दिया, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ KBO2. K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस पूरे के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज. इट इज़ कॉल्ड एज पोटाशियम मेटाबोरेट. These all are important reactions of borane. It result in formation of potassium metaborate. Reaction with metals, metals such as I react it with sodium. सोडियम से रिएक्ट कर दिया मानो, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस Na B3H8. ये वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इट इज़ फॉर्म्ड बाय रिएक्शन विद सोडियम. नेक्स्ट रिएक्शन विद हेलोजन. फॉर एग्जांपल मैं इसको हेलोजन किससे, क्लोरीन से रिएक्ट कर देती हूँ. तो हेलोजन इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ BCl3. क्लोरीन से रिएक्ट करने से इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ BCl3. लेकिन वैसे ही अगर मैं इसको ब्रोमीन के से रिएक्ट कर दूँ तो हमारे पास क्या था, B2H6. B2H6 का एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, उसमें की जगह क्या आ जाएगा, ब्रोमीन. तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ B2H5. एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उसकी प्लेस पे क्या आ गया, बोरोन. ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम, डाइबोरेन, या हम बोलेंगे इसको हेलो डाइबोरेन. हेलो डाइबोरेन मतलब हेलो क्या है यहाँ पे, ब्रोमो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रोमो डाइबोरेन. इज इट क्लियर. अगेन अगर हम इसको HX मतलब HCl या HBr, जहाँ पे X क्या है, हेलोजन, इससे अगर हम इसको रिएक्ट कर दें तो फॉर एग्जांपल HCl के साथ मैंने इसको रिएक्ट कर दिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ B2H5Cl. अगेन एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उसकी जगह पे क्या आ गया आपके पास, क्लोरीन. तो इसको क्या बोलेंगे हम, हेलो डाइबोरेन. हेलो डाइबोरेन है ना अगेन, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, क्लोरो डाइबोरेन. ठीक है. फिर अगेन है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्राइड NaH. सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके हमारे पास अगेन सोडियम बोरोहाइड्राइड मिल जाएगा हमारे पास. इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है ये सोडियम बोरोहाइड्राइड. रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड. रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, जो B2H6 है वो किसके डाइमर है, BH3 का डाइमर है B2H6. तो ये बीच से टूट जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास, BH3 और इट फॉर्म्स CO, BH3CO टाइप ऑफ कंपाउंड. अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, CO जो है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, BH3. such type of compound is formed. Next reaction is reaction with alkenes. एल्कीन्स के साथ कैसे रिएक्शन है, तो आपने हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन पढ़ी है, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर अगेन B2H6 हम किस में स्प्लिट कर सकते हैं, BH3. एक मोनोमर क्या है इसका, BH3 यूनिट है इसमें. तो एल्कीन में क्या होता है कि ये 3 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हो सकते हैं और इनकी क्या हो सकती है, हाइड्रोबोरेशन. हाइड्रोबोरेशन में एल्कीन एल्केन में चेंज हो जाएगा, एल्कीन में जाएगा और एल्कीन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा इस हाइड्रोबोरेशन में. तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, बोरोन
और मान लो हमारे पास एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और कितने हाइड्रोजन रिमूव किए थे हमने 3 हाइड्रोजन, तो ये कितने टाइम्स ऐड हो जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑर्गेनोबोरेन टाइप ऑफ कंपाउंड बन गया। ऑर्गेनोबोरेन मतलब बोरोन और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बन गया। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनोबोरेन, ठीक है। वैसे मान लो मैंने RC डबल बॉन्ड CH2 ऐसा कंपाउंड लिया है, तो क्या बन जाएगा आप पास BRCCH2 कितने टाइम्स बन जाएगा ये 3 टाइम्स, ऑर्गेनोबोरेन टाइप ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, दैट इज रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया इज NH3। NH3 के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करता है, तो मेरे पास बहुत सारी अलग अलग कंडीशन है, जैसे डाइबोरेन अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा। अगर मैं एक्सेस ऑफ अमोनिया लेती हूँ एट लो टेम्परेचर के ऊपर, एक्सेस ऑफ अमोनिया एट लो टेम्परेचर, तो मेरे पास बन जाएगा B2H6, साथ में इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 लग जाएंगे। Such type of compound is formed with excess of ammonia at low temperature. Again, if I use excess of ammonia at high temperature, अगर मैं यूज़ करती हूँ इसको, तो हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में आपके पास क्या बन जाएगा, पास BN है ये BNX, इट इज़ कॉल्ड एज बोरोन नाइट्राइड। बोरोन नाइट्राइड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आपके पास BN, N नंबर ऑफ टाइम या X नंबर ऑफ टाइम, कुछ भी बोल सकते हैं आप, बोरोन नाइट्राइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं लेती हूँ अमोनिया यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर मैं 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिएक्शन करवाती हूँ, तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ B3N3H6, B3N3H6, इट इज़ कॉल्ड एज बोराजीन, it is called as borazine. So these are very important reactions of diborane B2H6. So you have to remember all these reactions and these are very important on the examination point of view. इसको मैं आपको डिटेल में बता दूँ, ये B2H6 2NH3 क्या है, डाइबोरेन होता है ऐसे HH, अभी इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, इसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो ये ऐसा टाइप का मॉलिक्यूल होता है कुछ। तो जब मैं डाइबोरेन इसमें ऐड करूँगी, अमोनिया इसमें ऐड करूँ, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और क्या बन जाएगा BHH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा पास 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल प्लस आपके पास क्या बन जाएगा BHH, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑफ द डाइबोरेन। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो continuing the structure and bonding of diborane.